ਟੋਕੀਓ 올림픽ਸ 'ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਮੈਡਲ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮੀਰਾਬਾਈ ਚਾਨੂ ਨਾਲ ਨਿਊਜ਼ 18 ਨੇ ਕੀਤੀ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਗੱਲਬਾਤ। ਬੋਲੇ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ ਤੋੜ ਮਿਹਨਤ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੋਈ ਬੇਹੱਦ ਖੁਸ਼ੀ। ਮੀਰਾਬਾਈ ਚਾਨੂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਬਾਗੋ ਬਾਗ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਚਾਨੂ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਕੋਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚਾਨੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਵਧਾਈ। ਟੋਕੀਓ 올림픽 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ 3-2 ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਮਾਤ। 2 ਗੋਲ ਦਾਗ ਕੇ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਣੇ ਮੈਚ ਦੇ ਹੀਰੋ, ਪਰ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਨੂੰ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਹੱਥੋਂ ਮਿਲੀ ਮਾਤ। ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਖਾਈਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ, ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਕੀਤੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਐਲਜੀ ਨੇ ਪਲਟਿਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ। 26 ਜਨਵਰੀ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਪੈਨਲ। ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ। ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ। ਏਮਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਣਦੀਪ ਗੁਲੇਰੀਆ ਦਾ ਬਿਆਨ। ਬੋਲੇ ਜਾਇਡਸ ਨੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਸਾਂਝੇ। ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਵਿਧਾਇਕ ਬਾਵਾ ਹੈਨਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਚੱਲੀ ਗੋਲੀ। ਰਾਜ਼ੀਨਾਮੇ ਲਈ ਆਈਆਂ ਸੀ 2 ਧਿਰਾਂ। ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਚਲਾਈ ਗਈ ਗੋਲੀ, ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਜ਼ਖਮੀ। ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਡਿੱਗੀ ਛੱਤ, 3 ਜੀ ਜ਼ਖਮੀ। 2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਮਕਾਨ। ਘੱਗਰ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਪੱਧਰ ਨੇ ਵਧਾਈ ਟੈਨਸ਼ਨ। 746 ਫੁੱਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ। 751 ਫੁੱਟ ਹੈ ਖਤਰੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਤਬਾਹ ਹੋਣ ਦਾ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਡਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਵਿਜੇਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੀਰਾਬਾਈ ਚਾਨੂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅੱਜ 올림픽ਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਦਿਵਾਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਮੈਡਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਮੀਰਾਬਾਈ ਚਾਨੂ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਆਏ ਨੇ, ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਟ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੈਡਲ ਦਿਵਾਇਆ ਔਰ ਜਿੱਤ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਡਲ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਗੋਲਡ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। 49 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਭਾਰ ਵਰਗ 'ਚ ਚਾਨੂ ਨੇ ਇਹ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਗੱਲਬਾਤ ਚਾਨੂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं हूं पंकज कपाही और आज टोक्यो से सबसे बड़ी खुशी आई हमारे पास जब मीराबाई ने देश के लिए सिल्वर मेडल जीता और हर तरफ देश में मीराबाई का नाम चल रहा है। मीरा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज 18 पर। थैंक यू। विजय जी, जिस तरह से आपने मेहनत करवाई है और आज सबसे पहले आप मेडल दिखाइए, पूरा देश मेडल देखना चाह रहा है। मीरा जी, आपका सबको ये मेडल ओलंपिक का मेरा जी, जो चेहरे पे आपके मुस्कान है ना, पूरे देश के चेहरे पे मुस्कान आ गई आपकी इस मुस्कान की वजह से। थैंक यू सो मच। आप थकी भी बहुत ज्यादा है, पर मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस समय आप मुकाबले में जा रही थी उस समय आपके मन में क्या था? आपको था कि सिल्वर आ रहा है, आपको था कि मैं गोल्ड की तरफ जाऊंगी, कि उस समय मन में क्या था? हाँ, मैं कोशिश तो बहुत किए थी और गोल्ड मेडल जीतने के लिए। मैंने स्नेच में लास्ट लीग में नहीं कर पाई, तो मुझे ऐसा लगा था कि हाँ मैं सिल्वर तो है, पर मैं क्लीन एंड जर्क में मैंने ओलंपिक रिकॉर्ड के लिए मैंने पूरा ट्राई किया था, पर वो नहीं कर पाई। पर सिल्वर मेडल तो मुझे पक्का स्नेच में से ही मैं पता चल रही थी कि मैं इसने सिल्वर तो हो गया है, पर मैं गोल्ड के लिए मैंने बहुत फाइट किया था।
जब आप सिल्वर मेडल जीती तो उस समय मन में क्या था? चेहरे पे मुस्कान थी और पूरा देश आपको देख रहा था। आपके मन में उस समय क्या चल रहा था? उसी टाइम पे भी मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि हमारे सपने थे ओलंपिक का मेडल जीतना, सर दोनों के सपने थे, तो आज पूरा हुआ है, तो बहुत ज्यादा खुश हूँ। पूरा देश आपको बधाई दे रहा है। प्रधानमंत्री से आपकी बात हुई, प्रधानमंत्री जी क्या कह रहे थे? सर ने मुझे डायरेक्टली कॉल करके बधाई दी थी, तो मुझे सपना जैसा लगा था कि सर ने मुझे कॉल किया है, हमारी प्राइम मिनिस्टर जी ने मुझे कॉल करके बधाई दिया है, तो ये बहुत ही बड़ी बात है मेरे लिए। पूरा सपना जैसा लगा था मुझे, ऐसा कभी मेरे साथ हुआ नहीं। तो मुझे बहुत खुशी हुई, सर भी बहुत खुश हुआ, पूरा दुनिया खुश हुआ है, ऐसा बोल रही थी सर। तो मैंने भी बोला सर आपकी वजह से मैंने आज मेडल जीत पाया है, तो सर भी बहुत खुश हुए। आपके दोनों कोच आपके साथ हैं, विजय जी, संदीप जी। संदीप जी तो मेरे पंजाब से आते हैं। पूरी मेहनत संदीप जी और विजय जी ने करवाई है। कितनी ट्रेनिंग थी, कितने घंटे आप ट्रेनिंग करती थी, क्या क्या खाती थी, क्या कुछ करती थी, और क्या आपके सपने थे वो आपको छोड़ने पड़े इस ट्रेनिंग के लिए? ट्रेनिंग तो हमने दिन में हम 3 बार ट्रेनिंग किया है हमने, 7 आवर्स पर डे में हम किया है, तो हमने बहुत मेहनत किया है, सर ने भी बहुत सपोर्ट किया मुझे, डाइट में भी बहुत सारे, और हमने बहुत कुछ सोना पड़े कि सेक्रीफाइस करने पड़े, क्योंकि मैं यही तक पहुंचने के लिए डाइट में बहुत चीजों नहीं खाना पड़े, सिर्फ ट्रेनिंग में भी फोकस, और डाइट में चूज चूज के हम खाने के लिए वो सब किया है। तो ऐसा होता है कि एक प्लेयर्स हो तो डाइट में सारी चीजों में हम बहुत सारी सोच समझ के खाना और रहना पड़ती है। तो सिर्फ मैंने ट्रेनिंग और खाना और रेस्ट करने में फोकस किया था, तो इसकी वजह से। क्योंकि आप मणिपुर से आती हैं, एक छोटे से वहां से उठकर टोक्यो तक पहुंचना, उस रास्ते में कोई ऐसा सफर, ऐसी कोई बात जो आपको हमेशा याद हो? शुरुआत में आपको रोका गया जब 2014-15 में आप भार नहीं उठा पाई, उस समय आपने सोच लिया था कि मैं ये गेम छोड़ रही हूँ, मैंने नहीं इस गेम में आना? शुरुआती दौर में क्या दिक्कत थी आपको? सबसे पहले तो रियो ओलंपिक में भी मेरा पूरा सपने थे सर, कभी हमने बहुत मेहनत किया था साथ में, बहुत अच्छा ट्रेनिंग किया था रियो के लिए, उसी में भी हमने जो ट्रेनिंग में किया था, तो सेम रियो ओलंपिक में किया हो तो मेरा सिल्वर मेडल थी, पर उसी दिन मेरा दिन नहीं थी, तो हम मेडल मिस हो गई थी पूरा इंडिया के लिए, तो हम काफी दिन दुखी हुई थी, कुछ खा नहीं पाए थे, तो बहुत दुखी हुआ था। हमने इतना मेहनत करने के बाद भी हमने मेडल मिस हुआ, तो उसके बाद हमने बहुत डिस्कस किया, ट्रेनिंग में बहुत चेंज हुआ, सिर्फ सर ने भी मुझे समझाया था कि अभी सिर्फ खत्म नहीं हुआ है, बहुत आगे और भी बहुत सारे कर सकते हैं, तो मुझे भी बाद में रियलाइज हुआ था कि हाँ मुझे कुछ कर सकते हैं। तो उसी सामने हमारी वर्ल्ड चैंपियनशिप थे 2017 में, तो उसी में मैंने कुछ करके दिखाना है, सर का जो भी हमारी रियो में फेल हुआ है उसको वर्ल्ड में मैंने करके दिखाऊंगी, ऐसा सोच के मन में। तो हमने ट्रेनिंग बहुत अच्छा किया था, तो वर्ल्ड चैंपियन हुई थी, तो धीरे धीरे हम सब परफॉर्मेंस में भी काफी चेंज हुआ था। तो प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री जी ने आपको क्या बोला जब आपकी बात हुई? बधाई तो दी उन्होंने, स्पेशली कोई बात बोली आपको? ऐसे कोई खास नहीं, सिर्फ बधाई देता तो बहुत खुश हुआ है। आपने सबसे पहला ओलंपिक का, टोक्यो ओलंपिक का आपने नाम, इंडिया के नाम को ऊपर किया है, तो ये बहुत ही अच्छा है, आपने बहुत अच्छा गेम खेला है, तो यही बोली थी सर ने। जब आप ट्रेनिंग कर रही थी बहुत कुछ ऐसा खाने वाला होगा जो आपने मिस किया होगा, आपने नहीं खाया होगा, लेकिन अब सबसे पहले क्या खाएंगी जो आपकी फेवरेट चीज है कि अब मैं ये खाऊंगी, मैंने मेडल लेकर आई हूँ? मैंने बताया था मुझे पिज्जा बहुत पसंद है पिज्जा और आइस। अब हम सर डिनर करने ही जा रहे हैं, हम पिज्जा खाने जा रहे हैं। थैंक यू। संदीप भाजी ਤੁਸੀਂ ਪਰਾਂਠੇ ਖਿਲਾਓਗੇ? ਸੰਦੀਪ ਭਾਜੀ ਪਰਾਂਠੇ ਖਿਲਾਓਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਚ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਭੰਗੜੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਚ ਭੰਗੜੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ।
ਉਹ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਾਂ ਪਰਾਠਾ ਹੀ ਖਾਣਾ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਾਠਾ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਪਰਾਠੇ ਹੀ ਖਾਣੇ, ਇੱਥੇ ਪੀਜ਼ਾ ਖਾਣਾ ਪੈਣਾ। एक मैं जाते जाते दो चीजें पूछूंगा। एक तो वो एक डायलॉग है ना, हमारी छोरियां क्या छोरों से कम है के, वो आप सुना दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो नहीं, वो तो मैं कह सकता हूँ कि हमारी छोरियां के छोरों से कम है के। और ये मीरा भाई ने प्रूव किया बाजी, आकाश बाजी, कि हमारी लड़कियां लड़कों से बिल्कुल कम नहीं है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से मीरा भी गुजारिश करेगी कि जो हमारे बच्चे हैं उन्हें हम स्पोर्ट्स में लगाएं, जिससे कि हमारे बच्चों को एक तो सेहतमंद रहने का एक सिस्टम मिले और वो देश का नाम भी रोशन कर सके। अच्छा मीरा जी, लास्ट में ये बता दीजिए, जाते जाते देश को क्या कहना चाहेंगी आप, जो लड़कियां आपको देख रही हैं, स्पेशली जो फैमिली आपको देख रही है, क्योंकि पूरा देश पे आज चेहरे पे मुस्कान है और सिर्फ आपकी वजह से है। वही से मैं भी बोलूंगी, लड़की लड़कों से कम नहीं है। सच बोलूं तो लड़कों से लड़की ज्यादा पावर होते हैं। तो मैं ये खास फैमिली को ही मैं बोलना चाहती हूँ कि फैमिली काफी लोग होते हैं कि लड़की सिर्फ पढ़ाई करने हैं, गेम्स में नहीं जाना, गेम्स में जाके क्या करना है, वो सब छोड़िए। लड़की जो है वो उसकी मन में क्या है, क्या करना चाहती है, उसको सोच के गेम में भेजिए और उनको सपोर्ट कीजिए। उनको सपोर्ट, फैमिली की सपोर्ट नहीं हो तो हम आज तक ये पहुंचे हैं, ये नहीं कर पाती। तो मैं खास में फैमिली को रिक्वेस्ट करती हूँ, सारी फैमिली प्लीज लड़कियों को गेम्स में जो भी गेम्स पसंद है उसको भेजिए और सपोर्ट कीजिए। आपको याद है आप जब जा रही थी तो मेरे मेरे सहयोगी हैं उमेश, उनको आपने अपनी लैंग्वेज में गाना सुनाया था जाने से पहले। कौन सा? उमेश को आपने गाना सुनाया था, लोकल लैंग्वेज में आपने गाना सुनाया था। और आज पूरा देश जब झूम रहा है तो आप वही दो लाइनें गुनगुनाना चाहेंगी? मणिपुर का गाना। हाँ, वही बचपन का गाना मैं ही याद करती हूँ, वही गाती हूँ कि चेंज हो रही है ये ऐसा। तो खन 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 देखो हो करे मतम दो कलक ई बीजा सखी यही सुन खत न चैना मफी लड़ी तमिनर चंगम मंदे तंदे इदा खन खन खन। थैंक यू सो मच, थैंक यू, आपने समय दिया और पूरा देश आपको सैल्यूट कर रहा है। सलाम है आपको न्यूज़ 18 की तरफ से। थैंक यू सो मच। ਤਾਂ ਮੀਰਾ ਬਾਈ ਚਾਨੂ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਚ ਵੀ ਸੀ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਨਾਲ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਖੁਸ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਝਲਕ ਰਹੀ ਸੀ। ਵਧਾਈਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਟੋਕੀਓ ਓਲੰਪਿਕਸ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਮੀਰਾ ਬਾਈ ਚਾਨੂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ। ਵੇਟ ਲਿਫਟਿੰਗ 'ਚ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੈਡਲ ਟੈਲੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। और प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्वीट किया। प्रधानमंत्री ने लिखा कि टोक्यो ओलंपिक्स की इस तो शानदार शुरुआत नहीं हो सकती। मीरा बाई चानू के शानदार प्रदर्शन ने भारत का मान बढ़ाया है। वेट लिफ्टिंग च सिल्वर मैडल लई उन्होंने बहुत बहुत बधाई। उन्होंने कामयाबी हर भारती को प्रेरित करती है। ये ट्वीट प्रधानमंत्री वालों किया गया। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ शख्सियतां ने, उस तो इलावा भी खेड मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी ट्वीट किया। वो भी असी दसते हाँ। अनुराग ठाकुर ने लिखा कि पहले दिन भारत का पहला मैडल मीरा बाई चानू ने 49 किलो वेट लिफ्टिंग च हासिल किया है। भारत नूं तुहाडे ते मान है। ये ट्वीट जिहड़े खेड मंत्री ने अनुराग ठाकुर उन्हां वल्लों किया गया। कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के मुख मंत्री उन्होंने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि साडा पहला मैडल साई खौम मीरा बाई चानू नूं महिलावां दे 49 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग मुकाबले च 202 किलोग्राम की कंबाइन लिफ्ट नाल टोक्यो ओलंपिक्स च सिल्वर जितने लिए बधाई। तुहाडी प्राप्ति ते भारत नूं बहुत मान है। ये ट्वीट किया गया कैप्टन अमरिंदर सिंह वालों। और मीरा बाई चानू लंबे समय तो पटियाला दे विच ट्रेनिंग कर रही सी और पंजाब पुलिस के इंस्पैक्टर जिहड़े हुण गलबात के दौरान उन्हां दे नाल भी मौजूद सी। संदीप कुमार उन्हां दे सहायक कोच ने, उन्हां नूं भी मुख्य मंत्री ने
ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕਰ ਚਾਨੂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਨੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ 3-2 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ 2 ਗੋਲ ਦਾਗੇ ਔਰ ਅਗਲਾ ਮੈਚ ਹੁਣ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। ਭਾਜੀ ਲਾਗੇ ਆਇਓ, ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਤੇ ਆਰੰਭ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਰੰਭ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖੇਲੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਗੋਲ ਮਾਰੇ ਆ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਚ ਖੇਡਣ ਤੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਘਰ ਆਉਣ ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ। ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਬੇਟੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਖੇਡੇ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਗੋਲ ਰੁਪਿੰਦਰਪਾਲ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਟੀਮ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਮ ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਵਧੀ, ਚੰਗਾ ਖੇਡਿਆ। ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਵਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਮੈਚ ਹੈ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਵੇ, ਚੰਗਾ ਖੇਡੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਹਾਕੀ ਪਲੇਅਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਲੰਪਿਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਪਿੰਦਰਪਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਨੰਬਰ 2 ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਓਲੰਪਿਕ ਕੰਟੀਨਿਊ ਖੇਲਿਆ, ਬੜਾ ਫਿੱਟ ਹੈ ਬੜੀ, ਔਰ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਆ ਬੜੀ ਫਿੱਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੈ। ਇਸ